شہنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین برابری پارٹی پاکستان جماعت احمد کا لاہور بیورو آفس آمد اور ایڈیشنل بیورو چیف میاں عثمان سے انٹرویو کے دوران جماعت اسلامی کی پاکستان میں کبھی برسر اقتدار نہ آنے کی وجہ کیا بتائی، دیکھیے یہ رپورٹ۔ جواد صاحب، ایک بڑا موضوع جو زیر بحث آج تک سیاست میں رہا ہے کہ جس طرح آپ سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کراؤڈ سے ہی فنڈنگ کروائیں گے اور پارٹی کوئی فنڈ ویسے اپنے ڈائریکٹلی کینڈیڈیٹ کو نہیں کرے گی، تو اس طرح تو جماعت اسلامی بھی کرتی ہے اور آج تک آپ دیکھ لیں کتنی منظم جماعت، آج تک وہ بھی کبھی برسر اقتدار نہیں آ سکی، تو آپ کس طرح پھر یہ سارا سسٹم جو ہے وہ مینیج کرنے میں کامیاب ہوں گے، وہ بھی اتنے کم ٹائم میں جبکہ 2023 تقریباً سر پہ ہے؟ عثمان، اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا دنیا کی، تو جن ملکوں میں مذہب کے اوپر جو جماعتیں بنتی ہیں اور وہ اقتدار میں آتی ہیں، ان ملکوں کی جو معاشرت ہوتی ہے نا، جس کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں یا جس کو ہم سوسائٹی کی اٹھان کہتے ہیں، وہ تھوڑی سی فرق ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ تر لوگ تھوڑے سے ڈوگمیٹک ہوتے ہیں، وہ ان کی طرز معاشرت سیکولر نہیں ہوتی۔ جب میں سیکولر طرز معاشرت کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آئیڈیالوجیکلی سیکولر کہہ رہا ہوں۔ آئیڈیالوجیکلی پاکستان ایک مسلم اسٹیٹ ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو لوگ بھی الیکشن لڑتے ہیں ان کے اوپر یہ قطعاً ہے کہ وہ مسلمان ہونے چاہیے، جو وزیر اعظم ہیں یا صدر ہیں، یہ ان کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں، کانسٹیٹیوشن ہے، یہ آپ کے دستوری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر آپ طرز معاشرت اب دیکھیں تو یہ وہ نہیں ہے جو سعودی عرب میں تھی، اب تو ادھر بھی کھل رہا ہے سارا، لیکن جو ادھر تھی کہ ڈریس کوڈ تھا، آپ نے ڈریس پہننا ہے تو ایک خاص ڈریس کے اندر رہیں گے، آپ دوسرے ڈریسز نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزوں کے اوپر آپ کو بتایا جاتا تھا کہ ایسے کر سکتے ہیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ پاکستان ایسا معاشرہ نہیں تھا۔ پاکستان اور انڈیا دونوں جو تھے یہ اس طرح کے معاشرے تھے جہاں پہ مختلف لوگ مختلف قسم کے لباس پہنتے تھے، مختلف لوگ مختلف طریقے سے اپنے مذاہب کی جو ڈیوٹی سی وہ ادا کرتے تھے، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے۔ ایک خاص ہوموجنس قسم کا کوئی یا ایک ہی طرح کا اس کی ثقافت نہیں تھی، مختلف اس کے رنگ تھے۔ بالکل ٹھیک۔ پاکستان کے اندر مذہبی جماعت کا برسر اقتدار آنا وہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں ان کی ذہنیت کے اندر یہ چیز آتی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ آتے بھی ہیں کبھی برسر اقتدار تو وہ آتے ہیں کولیشنز قائم کر کے، آپ ہسٹری دیکھ لیں پوری۔ اور جو ایون آپ کے جو بانی پاکستان تھے وہ ایک سوٹ پہننے والے، ٹائی پہننے والے اور انگریزی میں تقریر کرنے والے آدمی تھے، اور وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، یا یہ ضرور کہتے تھے اپنی تقریروں میں کہ میں اسلام کی اور مسلم کی بات کرتا ہوں اور میں ان کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں۔ لیکن وہ یہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ ایک ٹائم آئے گا جب کہ مسلمان اور ہندو ختم ہو جائیں گے سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ نہیں، سیاسی طور پر سب سٹیزنز ہوں گے پاکستان کے۔ تو وہ ایک ان کی اپنی خاص سوچ تھی۔ آج بھی پاکستان کے اندر جتنی پارٹیز ہیں بڑی، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے پیپلز پارٹی، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے مسلم نون، ایک ہے پی ٹی آئی۔ یہ تینوں پارٹیز اگر آپ دیکھیں تو ان میں ہر قسم کے آپ کو لوگ ملیں گے، بلکہ آج جو عمران خان جو کچھ زیادہ ہی مذہبی رنگ دکھا رہے ہیں لوگوں کو اپنا، ان کے دھرنوں میں جو کچھ ہوتا تھا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو عمران خان کے بیانات پر آج دیکھیں، وہ جو لباس پہ بات کر رہے ہیں، فحاشی ورانی پہ بات شروع کر دی ہے۔ تو یہ حکمرانوں کو اصل میں نا مذہب کارڈ کھیلنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن جب آپ دیکھیں گے نا کہ عمران خان کی پوری سیاست تو اس میں مذہب انہوں نے کہیں پر بھی نہیں بولا۔ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ ان کی وہ دیکھ لیں، دھرنے دیکھیں تو جماعت اسلامی کے دھرنے میں ڈانس ہو سکتا ہے نہیں، تو یہ پی ٹی آئی کے دھرنے میں ڈانس ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا مذہب کو دیکھنے کا رنگ فرق ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب میں انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس راؤ سردار کی ہدایت پر عوامی رابطہ مہم کے تحت شہریوں کے مسائل سننے اور انہیں حل کرنے کے لیے ضلع سربراہ پولیس آفیسر ننکانہ کیپٹن ریٹائر بلال افتخار کیانی نے عوامی کھلی کچہری لگائی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ننکانہ صاحب سے چودھری محمد کامران کی اس رپورٹ میں۔
शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए जिली पुलिस ऑफिसर ननकाना कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की जानब से वार बटन शहर में खुली कचहरी लगाई गई। वार बटन शहर और गितोनवा के देहात से तल्लुक रखने वाले मर्द व खवातीन ने जिली पुलिस ऑफिसर ननकाना को अपने मसाइल से आगाह किया। डीपीओ ननकाना कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने साइलिन के मसाइल दरियाफ्त किए और मौका पर मुतल्लिका अफसरान को मसाइल के फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। इस मौका पर डीएसपी सर्कल ननकाना उस्मान खालिद और SHO वार बटन मोहम्मद अली चद्दड़ भी मौजूद थे। डीपीओ ननकाना कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी का कहना था कि पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक पुलिस को अवाम की भरपूर हमायत और ताउन हासिल नहीं होगा। डीपीओ ननकाना ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद वार बटन के लोगों के मसाइल खुद आकर सुनना था ताकि वार बटन और इसके मसाफाती दूर दराज के इलाकों की अवाम अपनी शिकायत खुद पेश होकर बयान कर सके और अवाम को मौका पर इंसाफ और इनकी शिकायत का इजाला हो सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। और अभी आपको बताएं कि आईजी पंजाब पुलिस के विजन के मुताबिक डीपीओ विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने विहाड़ी के मॉडल थाना दानेवाल में तशद्दुद के शिकार खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इंसाफ की फराहमी और कानूनी कार्रवाई के लिए दाद रसी मरकज़ बराए खवातीन कायम कर दिया है। इसी हवाले से देखिए अब्दुल्ला मलिक की रिपोर्ट। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल थाना दानेवाल विहाड़ी में, जहाँ पर आईजी पंजाब पुलिस के विजन के मुताबिक औरतों के तशद्दुद के खिलाफ सेंटर कायम किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई की ज़िलाई रहनुमा। आइए इनसे बात करते हैं, औरतों के तशद्दुद और हरासमेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे कायद इमरान खान साहब का विज़न था कि तशद्दुद से पाक मुआशरा, उसी हवाले से हमारे कायद इमरान खान साहब, हमारे वज़ीर आला पंजाब का जो इनिशिएटिव है एंटी हरासमेंट एंड वायलेंस सेल जो है वो ज़िला विहाड़ी में जो इस वक्त कायम किया जा चुका है और बेहतर तरीके से काम कर रहा है। आज हम यहाँ पे ख़ास तौर पे ये देखने आए थे कि विजन के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। तो ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे ख़वातीन की दाद रसी के लिए ख़वातीन सपोर्ट ऑफिसर जो है तैनात की गई हैं और ज़िला विहाड़ी में के 19 थानों में इसी तरह की ख़वातीन तैनात की गई हैं जो कि यहाँ पे वायलेंस का शिकार खातून या हरासमेंट का शिकार खातून आती है तो उसकी दाद रसी के लिए उसकी सुनवाई होती है और उसको फुल सपोर्ट की जाती है, चाहे वो मेडिकल की हो या आगे उसकी FIR हो या उसकी किसी तरह पे काउंसलिंग की हो। तो इंशाल्लाह जो है बेहतरी की गुंजाइश होती है। हर इदारा ये और बेहतर तरीके से काम करेगा और हमारे कायद और आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब का विजन को पूरा करेंगे। जी, ये मेरे साथ थे ज़िलाई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में इस सेल के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विज़न और आईजी पंजाब के विज़न के मुताबिक बिल्कुल सही तरीके से काम हो रहा है। जी। और अभी आपको बताएं कि सादकाबाद में थाना भोंग के इलाके नवाजाबाद 2 बकरियां चोरी करके ले जाने वाले कच्चे के चोरों ने ताक़ुब करने वालों पर फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में नवाजाबाद का महर शेख फायर लगने से जा बहक हुआ, जबकि जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर हलाक भी हुआ। इतला के बावजूद भोंग पुलिस न आई, लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ सादकाबाद मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अजहर खान। सादिकाबाद में चोरी की वारदातें न थम सकी। गुज़श्ता शब चोर कोट सब्जल के इलाके से बकरी करके कच्चा की तरफ जा रहे थे कि थाना भोंग नवाजाबाद के करीब चोरों के ताक़ुब में आने वाले लोगों पर चोरों ने फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में ताक़ुब करने वालों में मेहर शेख फायरिंग से जख्मी हुए, जो कि जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर जाँ बहक हो गए। चोरों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया और सादिकाबाद में बढ़ती हुई वारदातों पर अहले इलाका ने शदीद एहतजाज किया और मुतासरा खानदान ने फौरी तौर पर चोरों और डाकुओं के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा किया है। और अब खबर देंगे आपको हुजरा शाह मुकीम से, जहां सखी दिल इंसान सरदार तख्त महल की यादगारी समाधि तारीखी अहमियत की हामिल है, जिस पर आज भी इंडिया से इन चाहने वाले यहां आकर माथा टेकते हैं। इनके कारनामों की वजह से दुनिया में इनके चर्चे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यार खोखर। हुजरा शाह मुकीम के गांव भवन मनजब्ता में सरदार तख्त महल की यादगारी बड़ी दिलचस्प अहमियत की हामिल है। सरदार तख्त महल को मरने के बाद जलाने की कोशिश की गई, ना जलने की सूरत में खड़ी हालत में ही दफन करके ऊपर यादगारी मड़ी बना दी गई, जिस पर आज भी इंडिया से इनका खानदान माथा टेकने आता है। बाबे तख्त महल में जो साड़िया गया तो उन्होंने आग नहीं लगी सी, जिन्ना को जले कपड़े वगैरह उमें उन्हें दफन कर दिता सी ते बड़े गरीब परवर सन। एक जमींदार की है जिसका नाम तख्त महल था
और ये अपने समाजी कामों की वजह से इलाके में बड़ी मार्फत रखता था। तख्तमाल सही दिल इंसान था जो मजहब की तमीज किए बगैर गांव में हर आने वाले रात को अपनी तरफ से खाना और जहेज में एक भैंस भी गिफ्ट करता। गांव में 1885 को कायम होने वाले स्कूल और चंद तारीखी इमारतों की बाकियात आज भी मौजूद हैं। तख्तमाल का बेटा सरदार दौलत राम अंग्रेज सरकार का जेलदार था। दान इंडिया के शहर फिरोजपुर चला गया, वहां से डोगर कबीला यहाँ आकर आबाद हो गया। कैमरामैन नजीर रजा के साथ मोहम्मद यार खोखर, मेट्रो 1 न्यूज, हुजरा शाह मुकीम। और अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में वापडा डिवीजन सतियाना की नाअहली ने मासूम बच्चे की जान ले ली। चक नंबर 373 में ट्रांसफार्मर से लगी तार में करंट आ गया, जिसे छूने से 8 साला मोहम्मद हसन मौके पर जा बहाक हो गया है। मजीद तफसीलात मोहम्मद रिजवान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वापडा एहलकारों की नाअहली की वजह से नवाही कस्बा चक नंबर 363 गाहबे में एक मासूम ज़िंदगी जो है वो चली गई। गांव के मेन चौक में ट्रांसफार्मर की तारों में करंट आ गया, जिससे बच्चा एक मौका पर जाँ बाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 8 साला मोहम्मद हसन ननकाना साहब से अपने मामू अली अकदस के घर आया हुआ था। बच्चों के साथ बाजार में खेलते हुए गाँव के मेन चौक में लगे ट्रांसफार्मर की तारों से छू गया। करंट लगने से बच्चा मौका पर ही जाँ बाक हो गया, जबकि गाँव के मोअज़्ज़िज़ीन का इस हवाले से कहना था कि पहले भी कई दफ़ा इन तारों में करंट आ चुका है और महकमा को इत्तला भी दी गई है, लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी है। अगर महकमे वाले इसकी देखभाल वक्त पर करते तो इतना बड़ा वकुआ रूनुमा ना होता। ताहम पूरे गांव में गमो गुस्सा की लहर पाई जाती है। इलाका मकीनों का हुक्काम बाला से अपील करते हुए कहना था कि मोहम्मद हसन की मौत वापडा की नाअहली की वजह से हुई है, क्योंकि सतियाना डिवीजन के एसडीओ को कई मरतबा कॉल की गई, लेकिन उनके ऊपर किसी किस्म का असर नहीं हुआ है। जबकि इस हवाले से उनका यह भी कहना था कि आला हुक्काम को चाहिए कि वो मुलव्विस जो नाअहल एहलकार हैं वापडा के, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको मुअत्तल करें। जी और अभी आपको बताएं कि जलालपुर भटिया में कब्जा माफिया ने बेइज्जती की इंतहा कर दी। कब्रिस्तान की जगह को भी ना छोड़ा। बासर कब्जा माफिया ने कब्रों पर हल चलाकर ज़राई ज़मीन का हिस्सा बनाकर फसल उगा ली है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कब्जा माफिया, कब्जा माफिया, कब्जा माफिया। खौफ खुदा रहा न मरना याद आया। जलालपुर भटिया में कब्जा माफिया ने बेहिसी की इंतहा कर दी। नवाही गांव भाउद्दीन के में बासर अफराद ने कब्रिस्तान की जमीन पर हल चलाकर ज़राई जमीन का हिस्सा बना लिया, जिस पर इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਉਦੀਨ ਕੇ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਲਾ ਲਈ ਏ। ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਲਾ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਇੰਦੀ ਆ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁੜੇ ਵੈਣ ਜੀ। दुनिया की तलब में अंधे कब्जा माफिया ने जहां एक तरफ कब्रों पर हल चला दिए तो दूसरी जानब बाकी मांदा कब्रिस्तान को मवेशी छोड़कर चिरागाह में तब्दील कर दिया। कैमरा टीम के साथ अशफाक अहमद, मेट्रो 1 न्यूज, जलालपुर भटिया। और अभी आपको बताएं कि 3 दिन से जारी बारिशों ने चुनिया के इलाके राना टाउन में तबाही मचा दी है, जिसके बायस गलियां, बाजार और फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। इलाका मकीनों का लाखों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफूर अंजुम रोही नाले पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं क्या तफसीलात है। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं चूनिया के इलाके राना टाउन के रोही नाले पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 3 दिन की मूसलाधार बारिशों का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। पानी की सतह में वक्त के साथ साथ मजीद इजाफा होता जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि अरसा दराज से चलने वाले रोही नालों के दोनों तरफ बासर कब्जा माफिया ने घर और हवेलियों की गैर कानूनी तामीरात कर रखी हैं, जिससे रोही नाला सुकड़ गया है। पानी के बहाव में वाज़ेह कमी आई है। मकामी इंतजामिया ने कई सालों से मुकम्मल सफाई भी नहीं करवाई। जगह जगह नाले में रुकावटें हैं, जिससे पानी की रवानी मुतासर हो रही हैं और पानी पीछे रुक जाने से घर, गलियां और बाजार, फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। अगर मकामी इंतजामिया ने इक़दामात ना किए तो सैलाबी पानी मजीद तबाही मचा सकता है। सैलाबी पानी से मुतअद्दिद बीमारियां भी फैलने का खदशा बढ़ चुका है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर लाहौर और DC कसूर से मुतालबा किया है कि निकासी आब के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। जी और अभी आपको बताएं कि जंग में जालसाज गिरफ्तार कर लिया गया। जाली वीज़े बनाकर शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले गिरोह को जंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं इमरान अंसारी से। जी इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा। जंग पुलिस थाना कोट शाकर ने शहरियों को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाने वाले गिरोह को मशकूक जानकर मुलजिमान की गाड़ी को पुलिस नाके पर रोका।
मुलजिमान के कब्जे से 491 पासपोर्ट, स्टिकर्स व जाली स्टैंप बरामद की गई। इस मौके पर डीपीओ जंग सरफराज विरक का कहना है थाना कोट शाकिर ने एक खुफिया कार्रवाई की, उनको इत्तला मिली थी, उसमें उन्होंने एक गाड़ी में 2 मशकूक बंदों को पकड़ा जिनसे 491 पासपोर्ट्स मिले हैं और उसके अलावा उनसे जाली जो मोहरें हैं 7 हैं, उनसे स्टैम्प पैड्स मिले हैं और उनके मार्कर्स मिले हैं ग्रीन रंग के, जिसकी इंटेरोगेशन पर हमें ये पता चला है कि ये जाली वीज़ों का काम करते हैं, लोगों को लूटते हैं और वीज़ा बाहर का इराक़ और ईरान का वीज़े के नाम पर लोगों को लूटते हैं और उसमें ये जाली मोहरें लगाकर उनको वहाँ पर भिजवाने का कारोबार धंधा करते हैं। इसमें हमने जब इस फर्दर इंटेरोगेशन की है तो हमें पता चला है कि ये 2 और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एक इनका साथी जो अकील नामी है वो ईरान में है और एक इसका साथी शाहिद है वो इस्लामाबाद में है। तो ये 4 बंदों का गैंग है। तनवीर और बाबर नामी 2 बंदे हमने इसमें गिरफ्तार। मुलजिमान मुख्तलिफ एजेंट्स के जरिए जमा किए गए पासपोर्ट्स पर वीज़ों की नकल बनाते थे। कैमरामैन जमशेद के साथ इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, झंग। और अभी आपको बताएं कि कैरोड़ पक्का में सख्त-गजीदगी के वाक़यात में इजाफा हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने फौरी तौर पर टीम तश्कील दी और आवारा कुत्तों को फौरी तल्फ करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। महकमा हेल्थ की टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। मजीद देखते हैं कैरोड़ पक्का से हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। कैरोड़ पक्का के नवाही इलाका मौजा रिंजादा बस्ती न्यूरिंदा में गुज़श्ता रोज कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां पर 11 साला मासूम मुबशिर को आवारा कुत्तों ने नोच डाला था। बच्चे के चेहरे, सर और गर्दन पर गहरे जख्म आए थे। बच्चे को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कैरोड़ पक्का मुंतकिल कर दिया गया था। कुत्ते काटने के इस वाक़यात की मेट्रो 1 न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद डिप्टी डीएचओ डॉक्टर रशीद अंजम ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए एक टीम तश्कील दी कि इन आवारा कुत्तों को फौरी तौर पर तलब किया जाए। पिछले दिनों VHO गाई मेमन के इलाके न्यूरिंदा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसमें आवारा कुत्तों ने एक 11 साला मासूम बच्चे को नोच डाला। मेट्रो 1 न्यूज़ की निशानदेही पर डिप्टी DHO ने टीमें तश्कील दी और आज हम आवारा कुत्तों को तलब करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ कुत्तों को हमने तलब कर लिया है। बाकी जो है मुहिम चलाई जा रही है। इंशाल्लाह ये सारे कुत्ते तलब कर दिए जाएंगे। महकमा हेल्थ की टीम ने मुख्तलिफ इलाका जात में जाकर आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम चला दी है। डिप्टी DHO डॉक्टर रशीद अंजम और असिस्टेंट कमिश्नर कैरोड़ पक्का नईम बशीर टीम की निगरानी कर रहे हैं। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोड़ पक्का। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री डिस्पेंसरी की इब्तिदाई तकरीब मानावाला में मुनक्किद हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मानावाला से उसामा अकरम की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री डिस्पेंसरी की इफ्तिताही तकरीब मानावाला में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी हाफिज मोहम्मद असगर कादरी, सैयद इम्तियाज शाह, मोहम्मद आसिफ रजा कादरी, काशिफ हुसैन, हाफिज यासिर मदनी, मौलाना बहादुर अली रिजवी, अहमद निसार कादरी और दीगर थे। तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि AKF का लंगर खानों के बाद डिस्पेंसरी का क़याम खुश आइंदा है। सेहत, तालीम और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलतों के लिए हुकूमत के शाना बिशाना कोशां हैं। मुस्तकीन को सेहत की बेहतरीन सहूलतें मुहैया करेंगे। लंगर खानों और फ्री डिस्पेंसरी के नेटवर्क को तमाम सूबाई हल्का जात में पहुँचाएंगे। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम को नफसियाती मरीज बना दिया। हुकूमत फलाई अदारों की सरपरस्ती करे। कैमरामैन इशफाक शाह के साथ उसामा अकरम, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में आटे का बहरान संगीन हो गया है। आवाम को लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। घंटों इंतजार करने के बाद भी आटा नहीं मिल पा रहा। शहरियों को फराहम किए जाने वाले गैर मयारी आटे में कीड़े नजर आने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजर खान भट्टी से। जी नजर खान भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान चौक चुरन्ना पर और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सरकारी आटा है वो फरोख्त किया जाता है। तफसीलन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है जो कि घंटों घंटों तक लाइन पे लगे रहते हैं, मगर आटे का कोई टाइम टेबल नहीं। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो सरकारी आटा है ना ही खाने का होता है। शहरी को कहना है कि इस आटे के अंदर कीड़े भी होते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी भी मौजूद है जो कि आटा लेने आए हुए हैं। आइए इस मुताबिक इनसे बात करते हैं कि मजीद इसका क्या कहना है। ये अपने टाइम टेबल
वाली का कोई नहीं है। ये कभी 10 बजे आ जाते हैं, कभी 9 बजे आते हैं। आटा तो बिल्कुल 50 या 40 थैला लेकर आते हैं। आवाम ज्यादा होती है, या हम मजदूरी पे जाए सुबह या आटा लेने के लिए 9-10 बजे तक यहाँ पर होते हैं। वहाँ पर क्या मुतालबा है हम कमिश्नर दरागाह खां से ये अपील करते हैं कि मेहरबानी फरमाए, आटा ज्यादा है, आटे की छानबीन हो गई, जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है शहरियों को कहना है कि आटे की एक तो तादाद बढ़ाई जाए और आटे पर तवज्जो दी जाए ताकि आटा खाने का हो। जी कैमरामैन सीट के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज, डेरागाजी थान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि सूबाई वजीर हाउसिंग मलिक असद खोखर की गैर कानूनी एडवर्टाइजिंग बोर्ड के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। आपको बताएं कि आज से ही गैर कानूनी एडवर्टाइजिंग बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। काम करने वाले और ईमानदार अफसरान को अहम पोजीशन पर तैनात किया जाएगा। करप्ट अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वजीर के शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए नए मंसूबे शुरू करने की हिदायत। अगर एक भी गैर कानूनी बोर्ड रहा तो ऑफिसर सीट पर नहीं रहेगा। 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की है। पुलिस और जिला इंतजामिया की मदद से क्रैकडाउन किया जाएगा। करप्शन फ्री इदारा बनेगा तो माली बहरान पर काबू पालेंगे। आपको बताएं कि सूबाई वजीर हाउसिंग मलिक असद खोखर की गैर कानूनी एडवर्टाइजिंग बोर्ड के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। आज से ही गैर कानूनी एडवर्टाइजिंग बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। काम करने वाले और ईमानदार अफसरान को अहम पोजीशन पर तैनात किया जाएगा। करप्ट अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वजीर के शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए नए मंसूबे शुरू करने की हिदायत। अगर एक भी गैर कानूनी बोर्ड रहा तो ऑफिसर सीट पर नहीं रहेगा। 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की है। पुलिस और जिला इंतजामिया की मदद से क्रैकडाउन किया जाएगा। करप्शन फ्री इदारा बनेगा तो माली बहरान पर काबू पा लेंगे। आपको बताएं कि सूबाई वजीर हाउसिंग मलिक असद खोखर की गैर कानूनी एडवर्टाइजिंग बोर्ड के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। आज से ही गैर कानूनी एडवर्टाइजिंग बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। काम करने वाले और ईमानदार अफसरान को अहम पोजीशन पर तैनात किया जाएगा। करप्ट अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वजीर के शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए नए मंसूबे शुरू करने की हिदायत। अगर एक भी गैर कानूनी बोर्ड रहा तो ऑफिसर सीट पर नहीं रहेगा। 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। पुलिस और जिला इंतजामिया की मदद से क्रैकडाउन किया जाएगा। करप्शन फ्री इदारा बनेगा तो माली बहरान पर काबू पा लेंगे। आपको बताएं कि सूबाई वजीर हाउसिंग मलिक असद खोखर की गैर कानूनी एडवर्टाइजिंग बोर्ड के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। आज से ही गैर कानूनी एडवर्टाइजिंग बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि राजनपुर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने थाना कोट मिथन का दौरा किया, जिसमें उन्होंने थाने की सूरत हाल का मुआयना भी किया। मजीद जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर फैसल गुलजार की जानिब से थाना कोट मिटन का सरप्राइज विजिट के दौरान थाना के रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन किया और रिकॉर्ड की फौरी तकमील के अहकाम जारी किए गए। फ्रंट डेस्क हवालात और सीसीटीवी कैमरा जात को भी चेक किया गया। हवालात में कैदियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को हकायक पर यकसू करने और इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से हिदायत जारी की गई। मुतल्लिका अफसरान को जराइम की रोकथाम के लिए मुअस्सर गश्त और नाकाबंदी की हिदायत जारी कर दी गई। ये लोग हैं हिम्मत वाले, हम सबके हैं रखवाले। ये लोग हैं हिम्मत वाले, हम सबके हैं रखवाले। ऐ जान मुझे पहचान, मैं तो हूँ तेरा मान, मान मान हाँ मान। ये है आज की पुलिस, ये है मैदान की पुलिस। दरियासना डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार के फौरी नोटिस और पुलिस के बरवक्त रिस्पांस की बदौलत कमसिन बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस थाना कोट मिटन की काफिशों से कमसिन बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम अल्ताफ हुसैन धार लिया गया। पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई का आगाज, मुकदमा दर्ज। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर थे, मेट्रो 1 न्यूज राजनपुर।
और अभी आपको बताएं कि ठुल में खसरे की वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगी। गुज़िश्ता एक ही माह में खसरे के 70 बच्चे जान की बासी हार गए। ठुल में एक और माँ का लख्ते जिगर जिंदगी की जंग हार गया। नूर मोहम्मद भट्टी मोहल्ला कार हवासी 5 साल ज़मीर हुसैन खसरे जैसी खतरनाक वबा के बाइस जा बहक हो गया। महकमा सेहत और जिला इंतजामिया की जानिब से कोई भी इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। महकमा सेहत सिंध समेत जिला इंतजामिया भी ख्वाब खरगोश के मसले लेने में मसरूफ है। मुतासरा बच्चों के वालिदैन शदीद परेशानी और मायूसी का शिकार हैं। मुतासरीन ने सूबाई वज़ीर सेहत से खतरनाक वबा पर कंट्रोल करने के लिए हंगामी इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। पतोकी के मोहल्ला बकर मंडी हबीब टाउन में सीवरेज के पानी से 2 मकानों की दीवारें गिर गई हैं। आपको बताएं कि पतोकी में घर गृहस्थी का कीमती सामान सीवरेज के पानी की नजर हो गया। पतोकी के मोहल्ला बकर मंडी हबीब टाउन में सीवरेज के पानी से 2 मकानों की दीवारें गिर गईं। सीवरेज के पानी से मुतादिद घरों की दीवारों में दरारें भी पड़ गईं। मकीनों का कहना है कि मोहल्ला बकर मंडी हबीब टाउन का सीवरेज के पानी का ये देरीना मसला काफी पुराना है। मुतादिद बार शिकायत की तहम कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से सीवरेज का बोसीदा निज़ाम दुरुस्त करने की अपील कर दी है। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस का गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना सिटी पुलिस ने गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज करके 5 ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ियां भी बंद कर दी हैं। आपको बताएं कि चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस का गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस क्रैकडाउन में थाना सिटी पुलिस ने भी हिस्सा लिया और 5 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया, जबकि मुलजमान की गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। मुलजमान ने मुसाफिर गाड़ियों में LPG सिलेंडर नस्ब किए हुए थे जो जानलेवा हादसात का बाइस बन सकते थे। मुलजमान में यासिर कमाल, उमर दराज, नईम, अतीक असलम शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का यही कहना है कि इंसानी जिंदगियों को खतरे में डालने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ जिला भर में क्रैकडाउन जारी रहेगा। कानपुर के इलाके जाहिर पीर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई, जिसके दौरान मुलजमान की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ। मुसल्लम मुलजमान फायरिंग के बाद ताजिर से 8 लाख रुपए से ज्यादा नकदी छीन कर बआसानी फरार हो गए। आपको बताएं कि कानपुर के इलाके जाहिर पीर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ। वारदात के दौरान मुसल्लम मुलजमान ताजिर से 8 लाख रुपए से ज्यादा रकम छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक रिजवान और रहमान नामी ताजिर ने बेनजीर रोड से कैश लेकर बाईपास जाहिर पीर आ रहा था। ताजिर जैसे ही बाईपास जाहिर पीर पर वाक़े अजवा कमीशन शॉप पर गाड़ी से उतरा तो डकैतों ने उतरते ही फायरिंग कर दी। फायरिंग से दुकान में काम करने वाला मजदूर शदीद जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जाबर न हो सका। जबकि डकैत बैग में मौजूद 8 लाख रुपए से ज्यादा नकदी छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। चिन्योट के मोहल्ला गड़ा में वाक़ मोबाइल शॉप में आतिशज़दगी के वाक़े में तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए लाखों रुपए मालियत का सामान और मोबाइल फ़ोन्स जलकर खाकस्तर हो गए हैं। आपको बताएं कि चिन्योट शहर के अंदरून में वाक़ मोहल्ला गड़ा में दुकान में आतिशज़दगी के वाक़े के नतीजे में तमाम मोबाइल फ़ोन्स जलकर खाकस्तर हो गए, जबकि लाखों रुपए मालियत के कीमती मोबाइल फ़ोन्स और दीगर सामान जल गया। इतला पर 1122 की टीमों ने मौके पर पहुँच कर ऑपरेशन का आगाज़ किया। 1122 हुक्काम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। प्रिंसिपल कॉलेज मामू कांजन रईस इदारा सईदुर रहमान ने कहा है कि प्रिंसिपल कॉलेज मामू कांजन रईस इदारा सईदुर रहमान ने कहा है कि मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उम्मीदवार ज़्यादा और सीटें कम होने की वजह से मुकाबला बढ़ा है, चुनांचे तलबा को मुकम्मल तवज्जो पढ़ाई पर देना होगी।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मेरे देश का बिस्किट गाला, मेरे देश का बिस्किट। फास्ट केबल्स, क्योंकि घर एक बार बनता है, नस्लें देखता है, तारों से सितारों तक। फास्ट केबल्स, आपकी तरह सॉलिड, अमरेली स्टील्स। नया लक्स, इसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। अब आपको मिले चांद सा रोशन चेहरा। रोशन चेहरा, चांद सा तेरा। ये क्यों बुझाया? जब चांद यहाँ है तो रोशनी की क्या जरूरत? चांद सा रोशन चेहरा, नया लक्स। इंशाल्लाह इस पिच पे पाकिस्तान मैच जीतेगा। अब्बू पिच बन गई? जी मेरा बेटा। देखना अब्बू, एक दिन में आपके बनाए पिच पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। बीमार पड़ोगे तो क्रिकेट कैसे खेलोगे? बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर्स के साथ स्किन केयर। बड़े ख्वाब, बड़ी हिफाजत, नया लाइफ बॉय। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल। इन्हें खींचो, मड़ोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है? क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। आपकी तरह सॉलिड, अमरेली स्टील्स। फास्ट केबल्स, क्योंकि घर एक बार बनता है, नस्लें देखता है, तारों से सितारों तक। फास्ट केबल्स, मेरे देश का बिस्किट गाला, मेरे देश का बिस्किट। और अभी आपको बताएं कि एलपीजी एसोसिएशन शेखुपुरा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एलपीजी से मुंसलिक कारोबारी अफराद को बिला रुकावट कारोबार की इजाज़त दी जाए और इस सिलसिले में इंतजामिया को पाबंद किया जाए कि वो मुदाखलत ना करे। एलपीजी एसोसिएशन शेखुपुरा की जानिब से अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत पंजाब के सदर असलम खान ने की। इजलास में ज़िला बॉडी की तंजीम 9 मुकम्मल करने के साथ साथ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना था कि एलपीजी गरीब आवाम का ईंधन है। महंगाई के इस दौर में जहां घरों में सुई गैस की रोजाना की बुनियाद पर लोड शेडिंग हो रही है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जहां सुई गैस के कनेक्शन लगे ही नहीं है, तो वहां गरीब आवाम मजबूरन अपने घरों का चूल्हा चलाने के लिए 50 और 100 रुपए तक या उससे जायद एलपीजी के गैस सिलेंडर भरवा कर अपना गुजर बसर करते हैं। अहदेदारान ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि जब तक डिक्टेटिंग का मुतालबा नहीं बन जाता तब तक तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर और DPOs को हिदायत जारी की जाए कि मुताल्लिका महकमा और पुलिस की बराह रास्त मुदाखलत बंद करवा कर एलपीजी के कारोबार को चलने दिया जाए, क्योंकि इसके साथ लाखों लोग का रोजगार जुड़ा है। इजलास में एलपीजी एसोसिएशन शेखुपुरा के चेयरमैन लियाकत अली, वाइस चेयरमैन शेख इमरान, सदर मियाँ जफर, नायब सदर इकबाल गुज्जर, नायब सदर साहब विर्क, खुर्रम मियाँ अशफाक शेख, ओवैस जनरल सेक्रेटरी राना झांजेब कादरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी खालिद हुसैन, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद जुबैर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी काशिफ और ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान भी मौजूद थे। पाकपतन में इंटरनेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी के जवान बेटे ने नहर में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। FSC के नौजवान स्टूडेंट की लाश नहर से निकाल ली गई है। आपको बताएं कि पाकपतन के मोहल्ला कोकवाला के रिहायशी इंटरनेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी सज्जाद हाशमी ने 23 साल नौजवान बेटे मोहम्मद अली उर्फ लाल शाह ने जहनी तवाजुन दुरुस्त न होने की वजह से पाकपतन के नाल में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। टीम ने तवील जदोजहद के बाद लाश को नहर से निकालकर वर्सा के हवाले कर दी। मोहम्मद अली उर्फ लाल शाह FSC का स्टूडेंट था। वर्सा और अहले इलाका नौजवान की इस नागहानी मौत पर गम से निठान है।
खानपुर से खबर देंगे आपको। खानपुर के शहरी इलाके में तेजाब गर्दी के वाक़े में एक बच्ची समेत 3 खवातीन पर तेजाब फेंक दिया गया। आपको बताएंगे खानपुर में थाना सिटी की हुदूद में बस्ती से तेजाब गर्दी का वाक़या, बच्ची समेत 3 खवातीन जख्मी। अहले खाना ने बताया कि रात के पिछले पहर नामालूम चोर घर में दाखिल हुए। नकदी मोबाइल फोन चोरी करने के बाद अहले खाना के जाग जाने पर चोरों ने 3 खवातीन पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गए। वाक़े में 35 साल नसीम, 20 साल शमसा और 5 साल बच्ची फातिमा बीबी तेजाब से झुलसकर शदीद जख्मी हो गई, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलने पर सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक तहकीकात कर रही है कि ये वाकया चोरी का है या फिर जाती दुश्मनी में चोर का रंग देने की कोशिश की जा रही है। जख्मी खवातीन और बच्चे के चेहरे, बाजू और जिस्म के दीगर हिस्सों पर तेजाब फेंका गया। गुजरावाला थाना मॉडल टाउन के इलाके में डोर फिरने के वाकयात ना थम सके। तेज धार डोर ने एक और शहरी का गला काट दिया। गुजरावाला थाना मॉडल टाउन के इलाके में डोर फिरने का एक और वाकया पेश आया। डंगा फाटक के करीब पेश आने वाला इस वाकये में शहरी शदीद जख्मी हो गया। शहरी उस्मान वल्द यूसुफ मुगल खैलियानी का रिहायशी है। जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और SHO की चलाकियों के मुताबिक वाकये की इतला मिलते ही पुलिस रवाना कर दी गई। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर गोजर खान की कार्रवाई, 2 शादी हॉल सील कर दिए गए। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर ने इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी के बावजूद शादी हॉल में फंक्शन करने पर राजा मैरिज हॉल और हवेली मार्ग को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर का कहना था कि हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि चुनिया सर्कल भर में लुटेरे बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस वारदातों को रोकने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पुलिस को यरगमाल बनाकर ये चोरी की। आपको बताएं कि मामू बना दिया। आबादपुर स्टोर से 1,80,000 और 3 घंटे बाद इन्हीं डाकुओं ने चुनिया गौर में फ्रेंचाइज ली और 10,000 रुपये लूट लिए। तीनों वारदातों में मुलजिमान की CCTV फुटेज भी मौसूल हो गई है। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।